हेलो दोस्तों, स्वागत है एक और नए वीडियो में। आज की वीडियो है क्लास 5 की मैरीगोल्ड बुक में से। चैप्टर का नाम है रिप एंड विंकल। इस चैप्टर को मैंने दोनों लैंग्वेज में एक्सप्लेन किया है, तो पहले हम इसको इंग्लिश में सुनेंगे। अगर आपको हिंदी में भी सुनना है तो 4 मिनट के बाद ये हिंदी में भी अवेलेबल है, तो लास्ट तक मेरे साथ बने रहिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। In a quiet village nestled at the foot of the magnificent Catskill Mountains lived a kind-hearted man named Rip Van Winkle. Though he was loved by all the children who adored playing with him, Rip had a secret. He was terribly lazy. His farm, just behind the village, showed it, with broken fences and weeds growing taller than the corn. One sunny afternoon, Rip decided to escape his chores. With his loyal dog, Wolf, trotting beside him, he walked away from the village and into the thick, whispering forest. The sun began to dip below the horizon, casting long, dancing shadows as they headed deeper towards the mountains. Rip and Wolf climbed higher and higher until they reached the very top of the mountains. Exhausted but content, Rip lay down, gazing at the fading light of the day. He began to daydream, watching the last colors disappear from the sky, lost in his own peaceful world. Suddenly, a voice echoed through the quiet mountain air. Rip looked up to see an old, short man with a grizzled beard and thick hair, calling his name. The stranger was motioning for Rip to help him carry a large, heavy barrel. Rip felt a pang of hesitation, but his kind nature won out, and he began to move towards the man. Rip and the old man walked together through the rugged terrain, making their way to a rocky clearing. Rip helped to carry the heavy barrel, his hand gripped tightly by the mysterious stranger. The air grew colder, and a strange silence hung around them. As they arrived, Rip saw a peculiar sight. A group of odd-looking men, all with different colored beards and dressed in the same strange clothes, playing a silent game of ninepins. The moment Rip and his companion appeared, the men stopped their game and stared at Rip with wide, unblinking eyes. Rip felt a shiver of fear run down his spine. His companion began to pour a strange, frothy liquid from the barrel into several glasses. Rip, feeling compelled, drank a few glasses. A heavy drowsiness washed over him, and his eyelids grew incredibly heavy. When Rip finally woke up, the sun was shining brightly, high in the sky. He rubbed his eyes, feeling confused and a bit disoriented. Everything looked different, and a strange quiet filled the air. He called for Wolf, but his loyal dog was nowhere to be seen. Rip began his descent from the mountain, slowly making his way back towards the village. As he encountered people, he noticed they looked at him with utter surprise. One person pointed, exclaiming about his incredibly long, white beard and his deeply wrinkled face. Rip touched his face, bewildered. As Rip reached the heart of the village, an old woman named Katrina looked closely at his face. Her eyes widened, and a look of recognition, followed by pure joy, spread across her features. "It is Rip Van Winkle," she exclaimed, her voice filled with warmth, welcoming him home after 20 long years. शानदार कात्स्किल पहाड़ों के तल पर स्थित एक शांत गांव में रिप वैन विंकल नाम का एक बहुत ही दयालु व्यक्ति रहता था। वो बच्चों से बहुत प्यार करता था, उनके साथ खेलना भी उसे बहुत पसंद था। लेकिन रिप के साथ एक बात जो थी कि वो बहुत ही ज़्यादा आलसी था। गांव के ठीक पीछे उसके खेत थे, जो कि देखने में एकदम उजाड़ लगते थे, जहां सब कुछ टूटा फूटा था, यानी कि टूटी फूटी तार से बाड़ बनाई गई थी। चारों तरफ वीड्स उगे हुए थे, अनचाहे पौधे, और मकई उसमें बहुत ही कम थी, यानी कि काम की चीज़ें कम थी और कबाड़ ज़्यादा था। एक दोपहर जब बहुत ही धूप थी, रिप जो था गर्मी से अपने कामों से बचने के लिए फैसला करता है, और उसके साथ उसका वफादार कुत्ता जिसका नाम है वुल्फ, वो भी हो लेता है, और दोनों एक साथ गांव से घूमते हुए दूर घने जंगल में चले जाते हैं। पहाड़ एक तरफ ऊंचे ऊंचे दिखाई देते हैं, और दूसरी तरफ सूरज जो है वो ढलने की कगार पे आ जाता है, यानी कि शाम होने वाली थी। रिप और वुल्फ जो थे वो दोनों
पहाड़ों पर चढ़ने लगते हैं और काफ़ी देर तक वो चढ़ते रहते हैं और तब तक वो चढ़ते रहते हैं जब तक उन्हें पहाड़ों की चोटी जो है वो ना मिल जाए, यानी कि एकदम टॉप तक वो दोनों चढ़ जाते हैं। अब दोनों ही बहुत थक जाते हैं, लेकिन रिप जो है काफ़ी संतुष्ट है, वो बात सेटिस्फाइड है कि वो आज काम से बच गया और रोशनी खत्म होने वाली थी और वो वहाँ कुछ देर आराम करने लगता है। तभी उसे एक सपना दिखाई देता है और आकाश में जब तक रोशनी बिल्कुल गायब नहीं होती तब तक वो अपनी इस सपनों की दुनिया में खोया रहता है। अचानक शांत पहाड़ी के ऊपर एक आवाज़ गूंज उठती है और तभी जब उसकी आंख खुलती है आवाज़ सुनकर तो वो देखता है तो एक बूढ़ा छोटा आदमी उसके सामने खड़ा है। उस बूढ़े छोटे आदमी की दाढ़ी जो है काफ़ी लंबी है, घने बाल हैं और वो उसे पुकार रहा था। अजनबी जो था वो रिप की तरफ बढ़ रहा है क्योंकि वो रिप से कुछ मदद मांगना चाहता था। रिप देखता है तो वो पाता है कि वो बूढ़ा आदमी कुछ बड़े बड़े बैरल यानी कि ड्रम ऊपर ले जाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वो ले जा नहीं पा रहा है। वो रिप से मदद मांगता है, लेकिन रिप जो है हिचकिचाता है कि मैं अनजान आदमी की मदद कैसे करूं, लेकिन उसका स्वभाव बहुत ही दयालु है, इस वजह से वो तुरंत उसकी मदद करने के लिए मान जाता है। रिप और बूढ़ा आदमी दोनों हाथ पकड़े हुए आगे ऊबड़ खाबड़ रास्ते पे बढ़ते चलते हैं। रिप जो है उसने भारी बैरल ले जाने में मदद की उस बूढ़े आदमी की। बूढ़े आदमी ने, उस अजनबी ने उसका हाथ किस प्रकार से दबोचा हुआ है आप पिक्चर में देख सकते हैं, वीडियो में देख सकते हैं। दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़े हुए हैं और काफ़ी कसकर उसने उसका हाथ पकड़ा है। ऊपर जाते हैं तो हवा ठंडी होने लगती है, चारों तरफ सन्नाटा छा जाता है। जैसे ही वो ऊपर पहुंचते हैं तो रिप जो है उसको जैसे ही वे ऊपर पहुंचते हैं तो रिप को उस बूढ़े आदमी जैसे कई और अजीब से दिखने वाले लोग दिखाई देते हैं। सब लोग जो हैं उनकी दाढ़ी रंगीन है और अलग अलग रंगों वाली है। सब ने अजीब कपड़े पहने हुए हैं और वो सब एक खेल खेल रहे हैं जिसका नाम यहाँ पर 9 पिन कहा गया है। 9 पिन नामक कोई खेल खेल रहे थे वो लोग। जैसे कि आप देख सकते हैं वहाँ पर कुछ बॉटल्स पड़ी हुई हैं और जैसे ही रिप वहाँ पहुँचता है वो लोग जो थे वो अपना खेल बंद कर देते हैं और रिप को आंखें फाड़ फाड़ कर देखने लगते हैं। रिप को ऐसा लगता है कि जैसे वो उसे मारेंगे या फिर मतलब वो डर जाता है, काफ़ी घबरा जाता है। उसके शरीर में एक ठंडक सी दौड़ उठती है, यानी कि वो घबरा जाता है। अब उसके साथी जो थे वो बूढ़े आदमी के जिसके रिप ने मदद की, वो बैरल में से कुछ अजीब सा झागदार लिक्विड निकालते हैं और उसे कुछ ग्लासेस के अंदर वो डालना शुरू करते हैं। अब रिप जो है वो अगर उसको ना ले तो उसको थोड़ा लगेगा कि शायद वो मुझे मार ना डालें या मेरे साथ कुछ ज़बरदस्ती ना करें, इसलिए वो मजबूरी महसूस करते हुए चुपचाप ग्लास उठाता है और पी लेता है। जैसे ही वो ग्लास खाली करता है, ग्लास का जो लिक्विड होता है पी जाता है, उसके ऊपर एक बेहोशी सी नींद सी छा जाती है। उसकी पलकें भारी होने लगती हैं और रिप जो है वो सो जाता है। फिर जब रिप की आंख खुलती है यानी कि जब वो जागता है तो वो देखता है कि सूरज जो है वो चमक रहा है आकाश में ऊपर एकदम, और उसकी आंखें वो रगड़ता हुआ वहाँ से उठता है और काफ़ी डरा हुआ सा महसूस करता है क्योंकि काफ़ी कुछ सब अलग दिखाई दे रहा था। हवा के अंदर एक अजीब सी शांति थी। वो उठकर अपने कुत्ते वुल्फ को बुलाता है, लेकिन उसका कुत्ता वुल्फ जो है कहीं भी दिखाई नहीं देता। रिप जो है अब पहाड़ से उतरना शुरू करता है। धीरे धीरे वो अपने गांव की ओर जाने लगता है। जैसे वो अपने गांव के करीब पहुंचता है तो उसे उसके गांव वाले लोग मिलना शुरू हो जाते हैं और वो सब लोग उसे बड़ी ही आश्चर्यता से देखते हैं, यानी कि उन सबको उसे देखकर काफ़ी सरप्राइज होता है। एक व्यक्ति जो है काफ़ी लंबी सफ़ेद दाढ़ी उसकी जो थी, झुर्रियों वाले जो चेहरा था उसका, उसकी तरफ बड़ी ही सरप्राइज से देखता है। यानी कि रिप वैन विंकल जो है उसकी लंबी सी दाढ़ी उग चुकी है, उसके चेहरे पे झुर्रियाँ आ चुकी हैं और जैसे वो गांव के करीब पहुंचता है तो लोग उसे बड़े ही गौर से देखने लगते हैं। ये देखकर रिप जो है वो घबरा जाता है। वो अपने चेहरे को छूता है और हैरान हो जाता है। जैसे ही रिप जो है
अपने गांव के दिल में यानी कि हार्ट ऑफ द विलेज पहुंचता है, एकदम मध्य सेंटर में पहुंचता है, तो उसे वहां पर एक कटरीना नामक एक महिला बूढ़ी औरत मिलती है। वो उसके चेहरे को बड़े ही ध्यान से देखती है। जब वो उसे ध्यान से देखती है तो उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। वो उसे पहचान लेती है और उसे पता लग जाता है कि ये रिप वैन विंकल है। वो बड़ी ही खुश होती है उसको पाकर। और ये जो रिप वैन विंकल है, उसने कहा कि उसकी आवाज़ गर्मजोशी से भरी हुई थी, 20 वर्षों के बाद उसका घर स्वागत करती थी। यानी कि ये जो वाक्य लिखे गए हैं बताते हैं कि रिप वैन विंकल 20 साल के बाद घर लौटा है और इसी वजह से उसके चेहरे पे झुर्रियाँ पड़ गई हैं, उसकी दाढ़ी लंबी हो गई है, उसके बाल बढ़ चुके हैं और वो बूढ़ा हो चुका है। और वो जो महिला कटरीना उसको मिली है, वो उसकी पत्नी है जो कि बूढ़ी हो चुकी है और वो रिप वैन विंकल को खोया हुआ समझ रही थी। और शायद उसने सोचा होगा इतने साल बाद वो थोड़ी आएगा, वो तो कहीं लापता हो गया या फिर वो शायद रहा ना हो। लेकिन जब वो देखती है तो वो उसका स्वागत करती है, लेकिन 20 साल के बाद। तो ये सुनकर रिप वैन विंकल काफ़ी चकित रहता है। यानी कि कहानी से हमें पता लगता है कि रिप वैन विंकल 20 साल तक उस पहाड़ी पर सोया रहा उस मादक पदार्थ को पीने के बाद। तो बच्चों, ये थी हमारी कहानी। होपफुली आपको मज़ा आया होगा। और अगर वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। मिलते हैं आपको नए वीडियो में। टिल देन गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।